Good morning everyone. Today we have to start question number 8. The balance sheet of Sahil and Nikhil who share profits in the ratio of 3:2 as on 31st March 2017. Here balance sheet is given. Balance sheet as on 31st March 2017. First what we have to do? We have to mark here adjustment. Varad admitted on 1st April 2017 on the following terms. Means Varad is a new partner. Then first adjustment, Varad was to pay rupees 1 lakh for his share of capital. So here effect is on asset side, cash in hand. Here adjustment number 1. Second adjustment, he was also to pay rupees 40,000 as share of goodwill. So again here effect on cash in hand, adjustment number 2. Third adjustment, the new profit sharing ratio was 3:2:3. So in this question new profit sharing ratio is given. So this is the new things. Then adjustment number 4, old partners decided to revalue the asset as follows. So here building is given, building rupees 1 lakh. So here adjustment number 4 for building. Then furniture 48,000. Again adjustment number 4 for furniture. Debtors 38,000. This is bad debts is given. So debtors adjustment number 4. Then fifth adjustment, it was found that there was a liability for 3,000 for goods in March 2017 but recorded on 2nd April 2017. This adjustment is also different adjustment in this question, that liability is given for goods. Then you are required to prepare profit and loss adjustment account, capital accounts of partners and balance sheet after the admission of Varad. So here we have to open this, we have to solve this question. So we have to prepare here profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet as on 1st April 2017. So we have to start from here balance sheet. So first we have to do the liability side. Creditors is given. So creditors 60,000. Directly we have to record balance sheet assets liability side here. Creditors 60,000. Creditors 60,000. Then capital balances of Sahil and Nikhil. Sahil 80,000, Nikhil 1 lakh. So it is recorded in partners capital account, credit side by balance brought down. Sahil 80,000, Nikhil 1 lakh. Then directly come to the asset side. First is what given, furniture. Furniture 60,000. So it is recorded in balance sheet asset side, furniture 60,000. Here we already mark adjustment number 4. So adjustment number 4 देखेंगे, that old partners decided to revalue the asset as follows. Means asset का value change हो रहा है यहाँ पे. Building 1 lakh rupees, फर्नीचर 48,000. सो फर्नीचर पहले करेंगे क्योंकि फर्नीचर लिखा है. फर्नीचर का वैल्यू 48,000 मतलब कम है वैल्यू. सो जो न्यू वैल्यू है एडजस्टमेंट का वो आउटर कॉलम में लिखा 48,000. 60,000 माइनस 48,000 सो 12,000. दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन. क्यों डेप्रिसिएशन है? क्योंकि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर. सो 12,000. एसेट डिक्रीज, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 12,000. देन इमीडिएटली बिल्डिंग भी देखेंगे. बिल्डिंग का एडजस्टमेंट नंबर 4 मार्क किया है. बिल्डिंग का वैल्यू है 72,000. सो इनर कॉलम वी हैव टू राइट बिल्डिंग 72,000. और एडजस्टमेंट में क्या दिया है? बिल्डिंग वैल्यू 1 लाख, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया, बढ़ गया वैल्यू. सो 1 लाख आउटर कॉलम में लिखेंगे. वैल्यू इंक्रीज दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन. सो एड एप्रिसिएशन 28,000. 1 lakh minus 72,000, 28,000. Now this asset increase, that second effect profit and loss adjustment account credit side, because what? Appreciation 28,000. Then again here we have to mark adjustment number 4 for debtors. So debtors भी लिखेंगे. Balance sheet asset side 40,000. Immediately adjustment debtors 38,000.
ओके, दिस इज RDD। सो 38,000 डेटर्स का वैल्यू है, वो आउटर कॉलम में लिखा। 40,000 माइनस 38,000 2,000, दिस इज कॉल्ड एज RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सो लेस, तो अगेन डेटर्स रिड्यूस, डिक्रीज हो गए हैं, तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू RDD अकाउंट 2,000। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 इज completed, so tick mark is there. Then closing stock rupees 48,000. so closing stock asset side में लिखा, outer column directly because what, no adjustment is there. Then another cash in hand, so cash in hand asset में record करेंगे, but in bracket we have to write first 20,000, और यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने adjustment number 1 and 2. Immediately we have to read the adjustment that Varad admitted on 1st April 2017. So first adjustment, Varad was to pay rupees 1 lakh for his share of capital. मतलब वरद ने कितना कैपिटल बिजनेस में लाया है, 1 लाख रुपीज़. सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू वरद कैपिटल अकाउंट. सो इसका इफेक्ट पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़. कैश क्यों लिखा है, क्योंकि एसेट साइड में कैश इन हैंड दिया है. सो बाय कैश 1 लाख रुपीज़. और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे इंक्लूड हुआ, एसेट में कैश में प्लस 1 लाख. ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, ही वॉज ऑल्सो टू पे रुपीज़ 40,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल. मतलब उसने 40,000 का गुडविल भी ब्रिंग किया है. सो अगेन एंट्री इज देयर एंड दैट इफेक्ट ऑफ 40,000 इज इन द एसेट साइड, कैश में जाएगा. 40,000 यहाँ पे लिखा है हम लोग ने, 20,000 दिस कैश बैलेंस एंड 1 लाख दिस इज कैपिटल एंड 40,000 गुडविल. सो टोटल हो गया इसका 1,60,000 कैश. और ये गुडविल है, दैट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स बाय गुडविल, और वो भी रेशो में डिवाइड होगा. 24,000 आया है एंड 16,000. सो वेन एवर दिस 1/4 शेयर वगैरह दिया है, क्या नहीं दिया है. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि न्यू रेशो दिया है यहाँ पे 3:2:3. अगर न्यू रेशो देते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो हियर वर्किंग नोट इज देयर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन. न्यू रेशो दिया है इसीलिए, नहीं तो ये ओल्ड रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, सो अगर न्यू रेशो दिया रहता है देन फॉर्मूला इज सैक्रिफाइस रेशो. सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ये ओल्ड रेशो क्या दिया है, साहिल और निखिल का ओल्ड रेशो है 3:2. और न्यू रेशो इज ऑलरेडी गिवन इन द एडजस्टमेंट 3:2:3. सो दिस रेशो इज देयर. सो साहिल सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सो साहिल का ओल्ड रेशो कितना है 3, सो 3/5. और न्यू रेशो कितना है, सो 3/8. 3/8 क्यों आ गया, 3 + 2 5, 5 + 3 8, सो माइनस 3/8. सो इसका एलसीएम आ गया 40. सो 8 5 ज़ा 40 एंड 5 8 ज़ा 40. सो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा. 8 3 ज़ा 24 एंड 5 3 ज़ा 15. सो 24 - 15 अपॉन 40. सो साहिल सैक्रिफाइस रेशो आ गया 9/40. सेम वे निखिल का सैक्रिफाइस रेशो, निखिल सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू रेशो 2/8. सो अगेन एलसीएम 40 आ गया. 8 2 ज़ा 16 एंड 5 2 ज़ा 10. सो 16 - 10 अपॉन 40, 6/40. देन सैक्रिफाइस रेशो ऑफ साहिल एंड निखिल का 940 इज टू 640. मतलब रेशो हो गया 9/9 9:6.
6, 9:6 मीन्स कितना रेशो हो गया 3:2, 2 से डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, सो 3/2. सो गुडविल कितना दिया है 40,000. सो साहिल गुडविल इज इक्वल टू 40,000 इंटू साहिल का रेशो आ गया 3/5, सो आ गया 25,000. सो 5 8 ज़ा 40, सो 8,000 इंटू 3 24,000. और निखिल का गुडविल आ गया 40,000 इंटू 2/5 16,000. सो हियर दैट वी हैव टू प्रिपेयर हियर सैक्रिफाइस रेशो. क्यों सैक्रिफाइस रेशो किया है? क्योंकि न्यू रेशो भी एडजस्टमेंट में दिया है इसीलिए. सो दैट बाय गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस रेशो दैट इज 24,000 एंड 16,000. ओके, क्योंकि न्यू रेशो एडजस्टमेंट में दिया है इसीलिए. सो ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया. देन नाउ ऑल ट्रांजैक्शंस आर ओवर. नाउ वी हैव टू डू द टोटल हियर. तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टोटल करेंगे. दिस क्रेडिट साइड इज मोर 28,000 माइनस दिस डेबिट साइड अप टू वन एडजस्टमेंट इज ऑल्सो बाकी है. वन एडजस्टमेंट, दैट फिफ्थ एडजस्टमेंट. इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017. मतलब 3,000 के गुड्स लिए हैं, वो पैसा देना बाकी है. सो इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो ये बैलेंस शीट हम लोगों ने कब का बनाया है 1 अप्रैल 2017. सो फिफ्थ एडजस्टमेंट का इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा. लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेज 3,000 और लाइबिलिटी यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड लाइबिलिटी इंक्रीज दैट इज एक्सपेंसेस. सो टू लाइबिलिटीज फॉर गुड्स परचेज 3,000. Okay, so all adjustments are over here. So you have to make a tick in the adjustment. Okay, so all adjustments are over. Then do the total here 28,000 credit side minus this debit side. कितना आ गया? 12,000 plus 2,000 14,000 plus 3,000 17,000. So 17,000 minus 28,000 minus 17,000, so 11,000 आता है. And that is what profit, because credit balance of profit and loss adjustment account is known as what? Profit on revaluation. So this profit is distributed among the old partners Sahil and Nikhil into their which ratio? Old ratio 3:2. So 11,000 into 3/5 करेंगे तो आता है 6,600. फिर 11,000 into 2/5 निखिल का आता है 4,400. So this is called transfer to partners capital account. This is called as revaluation profit. This transfer to partners capital account credit side. So by profit and loss adjustment account profit. Sahil 6,600 and Nikhil 4,400. अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे. क्रेडिट का टोटल करेंगे पहले, बिकॉज क्रेडिट साइड मोर 1 लाख वरद. फिर निखिल का आता है 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 4,400 1,20,400. एंड साहिल का यहाँ तक टोटल आता है 1,10,600. डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन. साहिल 1,10,600, फिर निखिल 1,20,400 एंड वरद 1 लाख रुपीज़. एंड दिस balance is transferred to capital accounts. Okay, capital accounts of Sahil, Nikhil and Varad. This is transferred to capital account. Okay, so outer column 3,31,000. अभी बैलेंस शीट का भी ऑल ट्रांजैक्शंस आर ओवर. वी हैव टू डू द टोटल हियर. लाइबिलिटी साइड का टोटल आता है, तीनों ऐड करेंगे तो 3,94,000. और एसेट का टोटल आता है 3,94,000. बोथ द साइड हियर 3,94,000 liability side plus asset side. So this question you have to solve in your notebook.
new things in this question is what? Adjustment number 3, that new profit sharing ratio is given, and another is liability that recorded after 2nd April 2017, after 1st April. Okay, so we have to calculate this. You have to solve this in your notebook.